समर्थकों की गिरफ्तारी का विरोध करन सीएम हाउस पहुंचे रवनीत सिंह बिट्टू, पर पुलिस ने गेट ते ही रोकिया। बिट्टू बोले, मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते सीएम। धामी नूं मनाउण दीआं कोशिशां जारी। हुशियारपुर च धामी दे घर पहुंचे अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा सने कई होर अकाली आगू कर रहे मुलाकात। दिल्ली दे नवे सीएम नूं लैके बीजेपी दा वड्डा मंथन। पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग जारी। शाम 6 बजे विधायक दल की मीटिंग च होवेगा ऐलान। पंजाब सरकार दा मिशन रोजगार। मुख्यमंत्री भगवंत मान 966 नौजवानों नूं वंडणगे नियुक्ति पत्र। थोड़ी देर च चंडीगढ़ च समागम। डीजीपी पंजाब गौरव यादव की अज अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे गौरव यादव होंगे मीडिया के मुखातिब, कर सकते हैं कोई बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं, मैं रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन च दिखावांगे वड्डियां खबरां, पर सब तो पहला खबर एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे नाल जुड़ी हुई है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया सी, पर हुण उन्हां नूं मनाउण दीआं कोशिशां जारी ने। धामी नूं मिलण दे लई अकाली दल दे वड्डे आगू पहुंचे ने। हुशियारपुर दे विच हरजिंदर सिंह धामी दे घर दे विच इह मुलाकात हो रही है। एसजीपीसी प्रधान दे अहुदे तों अस्तीफा दे दिता सी हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों, ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 फरवरी ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ? ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? जी रणवीर जे गल की जाए तो करीब 1 ਤੋਂ 1.5 घंटे के विच ये मीटिंग चली है, जिस दे विच दलजीत सिंह चीमा ते होर भी जिहड़े सीनियर अकाली दल के आगू सी वो शामिल होए, चाहे वो लोकल लीडरशिप होवे। इस तो बाद चीमा बाहर आए ने ते चीमा जी ने दस्सिया कि जिहड़ा हरजिंदर सिंह धामी जी वालों अचनचेत इस्तीफा दिता गया सी, उस दे उत्ते ये सारियां विचारां कीतियां ने। बड़े सुखावे माहौल दे विच धामी नाल गल होई है। उन्होंने कहा कि धामी दे दिल विच कुछ ना कुछ रोष सी, जिस वजह करके धामी ने एडा वड्डा कदम चुक्या ते पार्टी धामी दे नाल खड़ी है ते जल्द ही आपां धामी नूं इस दे बारे मना जरूर लवांगे। पर अज कोई इस तरह का सिक्का नहीं निकलिया जिस दे विच धामी कहते होण कि शायद वो इस्तीफा वापस ले लैण। इस तरह की चीमा जी ने कोई गल नहीं की। उन्होंने कहा कि अगे भी ये मीटिंगां चलणगीਆਂ ते आने वाले समय दे विच धामी नूं जरूर राजी कर लैणगे। जी रणवीर, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਵੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਿ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੀ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਣਵੀਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। सताई साल बाद राज ते किस दे सिर ते सजेगा ताज, ये वड्डा सवाल दिल्ली दे विच, क्योंकि दिल्ली दे विच बीजेपी जित चुकी, जिस तो बाद हुण नवीं सरकार दा गठन होना है, मुख मंत्री दी चोण होनी है ते नवां सीएम कौन होएगा, सब दे विच सवाल यही है। बीजेपी दी पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग खत्म हो चुकी है ते मीटिंग दे विच पीएम मोदी भी शामिल होए ने। हालांकि शाम नूं विधायक दल दी मीटिंग दे विच नवें सीएम दा ऐलान होना है, पर उस तो पहला जो पार्लीमेंटरी बोर्ड दी मीटिंग हुई है उस दे विच भी वड्डे पद्धर ते इस नूं लैके विचारां कीतियां गईयां ने, कई नामां ते चर्चा हुई है। हालांकि किस दे सिर ते दिल्ली दे सीएम दा ताज सजेगा ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ
सवाल यही है कि दिल्ली का नवा सीएम कौन होएगा, विधायक दल किस नूं अपना आगू चुनेगा। बीजेपी की पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग इस वेले समाप्त हो चुकी है। 27 साल बाद जो 27 साल का सियासी सोका वो खत्म होया सी इन्हां इलैक्शनस दे विच ते बीजेपी वड्डे मार्जन दे नाल जित्ती ते हुण अगला सवाल कि कौन होएगा दिल्ली दा सीएम, खास करके किस दे नां ते मोहर लगेगी। वनीत मेरे सहयोगी इस वेले मौजूद ने फोन लाइन दे उत्ते। वनीत, पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग तो समाप्त हो चुकी है कि कुछ जानकारी मिल रही है कौन बन सकता सीएम? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और अब जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। जब शाम में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी उसमें जो पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे वो उसको उनकी जो नियुक्ति है वो अब की उसकी घोषणा जो है वो अब से थोड़ी देर बाद की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है वो नाम को लेकर के चर्चा हुआ और उसके बाद अब जो है अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो करेगा और जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे के बाद जो है विधायकों की बैठक होगी और जो नाम का जो खुलासा है या फिर नाम का जो सामने आएगा कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, जो कल 12 बजे के लगभग में जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेगा, उसका खुलासा जो है वो विधायकों की बैठक के बाद ही होगी। लेकिन साफ तौर पर मंथन का दौर जो है वो लगातार दिल्ली में जारी है और अब जो मंथन में जो हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नामों को लेकर के भी मंथन हुआ। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी, नाम उनके जारी की जाएंगे और जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद यह पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विनीत, जिस ढंग दे नाल दिल्ली दे विच नवा सीएम मिलेगा दिल्ली नूं ते किहड़े-किहड़े नाम ने जिन्हां दी चर्चा इस वेले चल रही है ते रेस दे विच सब तो अगे कौन नजर आ रहा है इस वेले, क्योंकि दिल्ली दे विच महिला मुख्यमंत्री बनन दी भी गल सामने आ रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें बीजेपी जो है वो उनके कई राज्यों में सरकार है लेकिन अभी भी बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुत संभव है कि दिल्ली में जो है वो महिला मुख्यमंत्री जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही साथ में कई ऐसे भी बिंदु हैं जिनके नाम में भी जो है वो तय की जा सकते हैं। कोई भी दलित चेहरा जो है उसे भी बीजेपी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां जो है वो संविधान को लेकर के बीजेपी पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से आक्रमण करती है, तो मैं इसमें एक दलित चेहरे को भी जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। इसके साथ ही साथ में कुछ में ऐसे नाम है जो बड़े नाम है, उनके नामों पर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की बात करें, वो काफी बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। विजेंद्र गुप्ता जो है वो भी जो है वो जब बीजेपी की 3 में सीट थी उस समय भी वो जीते थे और वहां तब से लगातार जीतते आए हुए हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हुई है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों को लेकर के जो चर्चा है, मंथन है, वो हो गया है। लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि चर्चा और मंथन का आखिरी दौर जो है वो अब हो गया है। जब विधायकों की बैठक होगी तब उस वक्त जो है वो बहुत धन्यवाद विनीत, मेरे सहयोगी दिल्ली तो जानकारी दे रहे सी। पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग खत्म हो चुकी है, पीएम मोदी भी इस मीटिंग शामिल हुए ने। पीएम मोदी की रिहायश से मीटिंग हुई, थोड़ी देर दे विच ऑब्जर्वरां दे नामां दा ऐलान होएगा। उस तो बाद विधायक दल की शाम वेले मीटिंग होनी है ते मीटिंग दे विच विधायक दल दा आगू चुनिया जाना है ते बीजेपी दे वल्लों अपना प्रस्ताव पेश किया जाएगा एलजी दे अगे, जिस तो बाद कल नूं रामलीला मैदान दे विच सौं चुक समागम होएगा ते भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ वखरा करना चाहुंदी है ते स्वागत झुग्गियां दे प्रधानां तो कराया जाएगा। यह भी चर्चा का विषय है ते नाल ही रामलीला ग्राउंड दे विच वड्डे पद्धर ते तैयारियां भी चल रही ने, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी जित्ती है दिल्ली ते दिल्ली दा सीएम कौन होएगा, महिला मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है, दलित चेहरे नूं भी अगे लियांदा जा सकता है। हालांकि शाम नूं सब कुछ क्लीयर होएगा, पर पार्लीमेंटरी बोर्ड की मीटिंग इस वेले समाप्त हो चुकी है। ऑब्जर्वरां दा ऐलान होएगा, जिस तो बाद शाम वेले विधायक दल की मीटिंग होवेगी, उस दे विच नाम ते मोहर लगेगी। रात पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद
एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार करें। हम एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें महाकुंभ की मृत्यु को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर अग्रसर होगी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विश्व स्तरीय कैपिटल दिल्ली बनने की ओर अग्रसर होगी। लगभग 11 वर्ष केजरीवाल साहब ने दिल्ली के विकास में एक दीवार बनकर खड़े रहे और दिल्ली के विकास को रोके रखा। दिल्ली को बैक गियर में चला दिया था, केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। अब ये नया इतिहास बनाने को दिल्ली अग्रसर हो रही है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने जा रही है। सर, क्योंकि ये पूरे आएंगे यहाँ पर, कितने गेस्ट दिल्ली उमड़ रही है। दिल्ली का हर नागरिक यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, परिवर्तन की इस वेला को देखने के लिए पहुंचने वाला है। कुछ विशेष अतिथि जिनको आप लोगों ने बुलाया? दिल्ली का हर गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाला आम नागरिक सबसे बड़ा वीआईपी है और वो खुद यहाँ उपस्थित होकर अपने गरीबों के मसीहा, विश्व में भारत की चमक व दमक बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद दे। सर, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा? कल 11 बजे शपथ ग्रहण का यहाँ समय रखा गया है और कल 11 बजे यहाँ शपथ। सर, आज अहम मीटिंग भी होनी है लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि अभी नाम के लेकर सबको क्यूरियोसिटी बनी हुई है। कब मीटिंग होनी है? भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्किंग वाली पार्टी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संगठनकर्ताओं ने कई दशकों से इस पार्टी को एक टीम स्पिरिट की तरह तैयार किया है। यहाँ बाप बेटा, माँ बेटी, भाई भाई पर्ची नहीं निकालते हैं। यहाँ लोकतंत्र है। पार्टी के बड़े सीनियर्स के साथ बैठकर नेता भी चुना जाता है और एक टीम की तरह काम होता है और ये पूरी टीम मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाने जा रही है। आज ये टीम कितने बजे बैठेगी? मीटिंग कितने बजे होगी? चुनाव खत्म हो चुका है
वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए, आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता हूं। साथ साथ आज हमारे तिलक नगर से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी भी सुबह उसमें थे। लोग बहुत नाराज हैं, परेशान हैं इस बात को लेके। मैं कहूंगा वो भी थोड़ा सा उस पर अपना बयान रखें। जी धन्यवाद सर। तिलक नगर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದು GBS ಇಂದನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ LG ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ समारोह होना है और उसके लिए रामलीला मैदान को चुना गया है। 20 फरवरी शाम 4:30 बजे ये शपथ समारोह होना है और ऐसे में रामलीला मैदान में हमारी मौजूदगी है। मैं दिखाती हूँ क्या तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सामान जो है वो यहाँ से उतर रहा है। लगातार ट्रक के ट्रक यहाँ पर खड़े हैं जिनमें जो बेस बनाने का सामान है वो तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। अनलोडिंग उसकी हो रही है। इस तरीके के 3-4 ट्रक यहाँ पर आप खड़े देख सकते हैं। ज़मीन को समतल बनाने के लिए जो मशीनें हैं, क्रेन्स वाली जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मशीनों से भी यहाँ पर इनको समतल किया जा रहा है। पीछे की तरफ आप जब देखेंगे तो क्योंकि पूरा मैदान है ऐसे में मिट्टी को सेटल करने के लिए पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े पूरे काम के दौरान। तो ये भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है और इसके पीछे ही ठीक कुछ कैनोपीज कल से बनाकर अभी तक तैयार कर दी गई हैं। इन कैनोपीज में अधिकारी जो हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो MCD के अधिकारी हैं, वो आगे किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अभी उसके लिए ये टेम्परेरी कैनोपीज जो हैं वो बनाई गई हैं। बाद में इनका प्रयोग किसी और काम के लिए किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे चेयर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। 20 से 30 हज़ार लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात सामने आ रही है और ऐसे में वो चेयर्स वहाँ पर नजर आ रही है। और उससे जब इधर को आप नजरें दौड़ाते हैं तो चेयर्स के बाद आपको नजर आते हैं ये सोफे। जो सोफे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये वाइट कलर के सोफे सारे यहाँ पर रखे गए हैं जिनको फ्रंट लाइन में लगाया जाएगा। फॉर्मेशन D शेप की ही होगी। बताया जा रहा है कि 3 मंच जो है वो बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा जो सेंटर में बनेगा, तकरीबन जहाँ अभी हमारी मौजूदगी है इसी जगह जो बड़ा मंच है वो बनेगा और 2 मंच बताए जा रहे हैं कि साइड में लगाए जाएंगे। और जो डिग्निटरीज हैं
उनमें जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता हैं वो तो रहेंगे ही, सांसद जो है वो रहेंगे, बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री को न्योता भेजा जाएगा, साधु संतों को सम्मानजनक उनको भी न्योता भेजा जाएगा, कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी हो सकते हैं, दिल्ली से प्रबुद्ध लोग भी हो सकते हैं, इन लोगों को इनवाइट भेजा जाएगा। और यहाँ जहाँ अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर जो है वो सेंटर स्टेज बनेगा, मुख्य मंच बनेगा, जहाँ पर कैबिनेट और प्रधानमंत्री जहाँ पर मौजूद रहेंगे वो बिल्कुल सेंटर स्टेज बनेगा, और लेफ्ट और राइट साइड में दो